Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is time. What is a clock? A clock is an instrument used to measure, keep, indicate time. Now watching time in a clock. We use hours, minutes and seconds to measure time. 1 hour is equals to 60 minutes, 1 minute is equals to 60 seconds. Clocks and watches show the time of the day. They usually have hour and minute hand. Hour hand जो छोटे वाली होती है, minute hand जो आपकी बड़े वाली होती है, और किसी किसी वॉच में आपको मिलेगी second hand. Some watches have a second hand too. When the minute hand is at 12, the hour hand shows the hour of the day. As the hands move, the hour hand continues to show the same hour till the minute hand reaches 12. Now 2 o'clock, यहाँ पे आपकी hour hand 2 पे है और minute hand 12 पे है, तो it's 2 और 2 o'clock. उसके बाद आपकी जो minute hand है वो 3 पे है और hour hand आपकी still 2 से थोड़ा सा आगे है, तो 2:15 और 2:15 और 15 मिनट्स पास्ट 2. उसके बाद आपकी जो मिनट हैंड है वो 6 पे है और आर हैंड जो है वो 2 और 3 के बीच में है. दैट मीन्स 2:30 और 2:30 और 30 मिनट्स पास्ट 2. उसके बाद आपकी जो मिनट हैंड है वो 9 पे है और जो आर एंड है वो ऑलमोस्ट 3 पे पहुंचने वाली है. दैट मीन्स 2:45 और 2:45 मीन्स 15 मिनट बचे हैं 3 बजने में और 15 मिनट्स टू 3. नाउ आर हैंड इज एट 3 एंड मिनट हैंड इज एट 12 एग्जैक्टली. दैट मीन्स इट्स 3 o'clock. The minute hand takes 5 minutes to move from one number to the next. So at a number, the minute past the hour is equals to 5 multiplied by hour number. On some clock faces, all the minutes are marked. So there are 4 minutes marks between each pair of the hour number. Means 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 की काउंटिंग रहेगी. To read the minutes, count the multiples of 5, 0, 5, 10, 15 and so on, swept by the minute hand. What if the minute hand is on a minute mark? From the last hour number, count the minutes up to the mark and add. जिस नंबर पे है वो है वहां तक आपको काउंट करना है. Remember, for reading minutes, we start from the hour number 12, which is taken as 0. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से. तो यहाँ पे जैसे 0 पे है तो 0 मिनट्स, 1 पे आते ही आपकी 5 मिनट्स, 2 पे आते ही आपके 10 मिनट्स, देन 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड देन अगेन 60 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद आपका 1 आवर. टाइम कितना हुआ है अभी इसमें? 9 o'clock. फर्स्ट, मल्टीप्लाई 5 बाय द नंबर और पॉइंटेड टू और क्रॉस्ड बाय द मिनट हैंड. सेकेंड, इफ नीडेड काउंट द मिनट मार्क्स and add 1, 2, 3 and 4 minutes is equals to 5 multiply by hour number. कि जिस पे आपकी मिनट की सुई है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस काउंट ऑफ मिनट मार्क्स. नाउ मिनट्स इज इक्वल्स टू कितने हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय आपकी मिनट एंड किस पे है? 2 पे. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10. दैट मीन्स टाइम कितना हुआ है? हमारी आर एंड कहाँ है? 8 पे. तो 8:10 मिनट. ठीक है, ये मिनट मार्क्स हैं जो बीच में गिवन है. 4 मार्क्स है, उनको भी हम ऐड कर सकते हैं अगर मिनट मार्क पे कहीं पे है तो आपकी मिनट वाली सुई. नेक्स्ट में आपके मिनट्स कितने हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इसके बाद 2 के बाद 1, 2, 3 पे है आपकी मिनट मार्क. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13 मिनट्स और टाइम कितना हुआ है? 8:13. नेक्स्ट मिनट्स कितने हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 37. दैट इज टाइम इज 5:37. नेक्स्ट में 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना? 4 मिनट्स और टाइम कितना हुआ है? 10:04, 10:04 मिनट. नाउ यूज ऑफ AM एंड PM. A day has 24 hours. It is divided into 2 12-hour periods. The first period is from 12 midnight to 12 noon. It is called anti-meridian
or before midday and is written as AM or AM in short. So 10 AM means 10 o'clock in the morning. The second period is from 12 noon, दोपहर के 12 बजे से to 12 midnight. It is called post meridian or after midday and is written as PM or PM in short. So 10 PM means 10 o'clock at night. Noon and midnight divide the two periods and therefore belong to neither. So we do not write AM or PM with them. मीन्स 12 बजे चाहे दोपहर के हैं तो उसके साथ ना AM लिखेंगे ना PM, ना रात के 12 बजे के साथ AM और PM. जस्ट नून एंड मिडनाइट और 12 नून एंड 12 मिडनाइट. नाउ AM वाला टाइम पीरियड है आपका रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक. इट्स AM 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM 5 AM 6 7 8 9 10 11 एंड 12 नून. और 12 नून के बाद आपका रात के 12 बजे का PM है. 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 6 7 8 9 10 11 PM and 12 midnight. Now first, how many hours are there between 8 PM and 7 AM? The next time between 8 PM and 12 midnight. शाम के 8 बजे से 12 बजे तक कितने आवर्स हुए? 4 आवर्स. ठीक है, 8 के बाद 12 तक 4 आवर्स. टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 7 AM. उसके बाद रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक कितने आवर्स हुए? 7 आवर्स. सो टाइम बिटवीन 8 PM एंड 7 AM इज इक्वल्स टू, दोनों आवर्स को प्लस कर दो, 4 आवर्स प्लस 7 आवर्स इज इक्वल्स टू 11 आवर्स. नाउ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1. राइट द टाइम एज शोन. ए पार्ट करते हैं. कितना बजा है? आपकी जो आर एंड है वो 12 पे है और जो आपकी मिनट एंड है वो 12 के बाद 1 से पहले 3 पे है, तो 12:03. बी पार्ट करते हैं. आपकी जो आर हैंड है वो 12 और 1 के बीच में है और मिनट एंड किस पे है? 6 पे. दैट मीन्स 12:30. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द टाइम एज शोन. ए पार्ट. मिनट हैंड हमारी 9 पे है और आर हैंड हमारी 8 पे है. दैट मीन्स 7:45, 8 बजने में 15 मिनट. बी पार्ट में देखो, आर हैंड आपकी 4 पे है और मिनट हैंड आपकी 10 पे है. 10 मीन्स 2 पे 10 मिनट्स हुए हैं, तो 10:04 और 4:10. सी पार्ट देखो, आर एंड आपकी 4 पे है और मिनट एंड आपकी 3, दैट मीन्स 15. और यू कैन से 4:15 और 4:15. राइट. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ द हैंड्स टू शो द टाइम. ए पार्ट करते हैं. कितना है? 7:47. 7:47 का मतलब क्या है कि हमारी जो आर एंड है वो ऑलमोस्ट 8 के पास पहुंचने वाली है और 47 मिनट एंड हमारी 45 के बाद यहां पे 47 पे है. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मच टाइम हैज पास्ड. ए पार्ट. फर्स्ट वाली क्लॉक में कितना हुआ है? 3 AM. उसके बाद 3 AM के बाद 9, 15, 15 के बाद 16, 17, 18, 9, 18. तो 3 AM to 9, 18 AM. दोनों AM है तो काउंट कर लेते हैं. 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9. 6 आवर्स कंप्लीट. 6 आवर्स और 9 के बाद 18 मिनट्स. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फिल इन द टाइम विद AM और PM एज नीडेड. ए पार्ट. 5 o'clock इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग है तो कौन सा टाइम है? AM. तो 5 AM.
तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के फिलअप्स आपको ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट. नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 6 AM एंड नून. नून मीन्स 12 o'clock, दोपहर के 12 बजे तक. तो 6 AM के बाद 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. कितने आवर्स हो गए? 6 आवर्स. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज अदर मेजर्स ऑफ टाइम. To measure long periods of time, we use days, weeks, months and year. 1 day is equals to 24 hours, 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. Now, 1 week is equals to 7 days, 1 month is equals to 30 days, 1 year is equals to 365 days, 1 year is equals to 12 months. There are 52 weeks in a year. Now, next is leap year. The earth takes about 365 days and 6 hours to go around the sun. But we keep only 365 days in a common year. The time left out is generally added every 4th year as an extra day in February. Then the year has 366 days and is called a leap year. February, which has 28 days in common year, means normal year में February में 28 days, has 29 days in leap year. और जो leap year होगा वो 29 days होंगे उसमें Feb में. Which years are leap years? First, years that end in 2 zeros are leap years if they are divisible by 400. Next, for all other years, if the year is divisible by 4, it is a leap year. Among 2012, 2000 and 1900, which years are leap years? Now 2012 does not end in 2 zeros, so we divide by 4 to test. हमने 2012 को 4 से डिवाइड किया, कंप्लीट डिवाइड हो गया. 2012 is divisible by 4, so it is a leap year. 2000 and 1900 end in 2 zeros, so we divide by 400 to test. दोनों को 400 से किया, complete divide. 2000 is divisible by 400, so it is a leap year. 2000 and 1900 end in 2 zeros. दोनों ही 2 जीरो पे खत्म होते हैं, तो हमें क्या करना है? So we divide by 400 to test. तो 2000 को हमने डिवाइड किया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया. 2000 is divisible by 400, so it is a leap year. Now 1900 को हमने 400 से डिवाइड किया, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, 300 आपका लेफ्ट बचा. So 1900 is not divisible by 400, so it is not a leap year. Now conversions. Change 5 hours 20 minutes to minutes. कैसे चेंज करेंगे? वी नो दैट 1 hour is equals to 60 minutes. So 5 hours is equals to 5 multiplied by 60 is equals to 300 minutes. और 20 minutes already minutes में है, we just add it. तो 300 minutes plus 20 minutes is equals to 320 minutes. Now next, convert 250 minutes to hours and minutes. जब हमें मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, वी नो दैट 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 hour, सो वी हैव टू डिवाइड द मिनट्स बाय 60. सो 250 मिनट्स इज इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 60. तो 60 से हमने डिवाइड किया, तो जो कंप्लीट डिवाइड हुआ दैट इज 4, जो हमारा क्वोशिएंट है. ऑन डिवाइडिंग 250 मिनट बाय 60 मिनट, 10 मिनट्स आर लेफ्ट ओवर एज रिमाइंडर. तो और ये जो हमारा रिमाइंडर है, सो 4 hours and 10 minutes, जो कंप्लीट हमारा डिवाइड हुआ, जो क्वोशिएंट आया दैट इज द आवर्स. सो 250 minutes is equals to 4 hours, और जो आपका रिमाइंडर है दैट इज द मिनट्स. तो 4 hours 10 minutes. Now change 4 minutes 12 seconds to seconds. We know that 1 minute is equals to 60 seconds. तो 4 minutes is equals to 4 multiplied by 60 is equals to 240 seconds. और 12 seconds already seconds में है. So 4 minute 12 seconds is equals to 240 plus 12 second is equals to 252 seconds. Now change 562 hours to days and hours. We know that 24 hours is equals to 1 day. तो 562 आवर्स को हम क्या करेंगे? 24 से डिवाइड करेंगे,
तो हमारे पास आएंगे हाउ मेनी डेज। तो हमारा जो कंप्लीट जो क्वोशंट आया दैट इज द डेज और रिमाइंडर इज द आवर्स। तो 562 आवर्स इज इक्वल्स टू 23 डेज एंड 10 आवर्स। नाउ कन्वर्ट 2 days 14 hours to hours. We know that 1 day is equals to 24 hours. So 2 days is equals to 2 multiplied by 24 hours is equals to 48 hours and 2 days 14 hours. 14 hours already hours में है तो 48 hours plus 14 hours is equals to 62 hours. Now next change 3 months 2 weeks 2 days. We know that 1 month is equals to 30 days. So 3 months is equals to 3 multiplied by 30 days is equals to 90 days. And 2 weeks. We know that 1 week is equals to 7 days. So 2 weeks is equals to 2 multiplied by 7 is equals to 14 days. Now add करेंगे 3 months and 2 weeks is equals to 90 days plus 14 days is equals to 104 days. Now next exercise 11.2. Question number 1. Fill in the blanks. ए पार्ट करते हैं इसका। 6 hours is equals to how many minutes? तो we know that 1 hour is equals to 60 minutes. तो 6 hours is equals to 6 multiplied by 60. 6 6 36 360 minutes. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चेंज टू मिनट्स। मिनट्स में चेंज करना है। ए पार्ट 8 hours. We know that 1 hour is equals to 60 minutes. तो 8 hours कितने में हो जाएंगे? 8 into 60. 8 6 48. 480 minutes. कितने हो गए? 480 minutes. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट टू सेकेंड्स। ए पार्ट करेंगे 4 minutes। 4 minutes को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds. तो 4 minutes इज इक्वल्स टू 4 multiplied by 60. 4 6 24. 240 seconds. 240 seconds. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चेंज टू आवर्स। ए पार्ट 9 days. We know that 1 day is equals to 24 hours. 1 day is equals to 24 hours. तो 24 9 days में 24 multiply by 9. 9 4 जा 36. 6 3 carry 9 2 जा 18 plus 3 is 21. 216 hours. 9 days is equals to 216 hours. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट टू डेज 8 weeks. We know that 1 week is equals to 7 days. So 8 week is equals to 8 multiplied by 7. 8 7 जा 56 days. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। Now next question number 6. Convert to hours and minutes. हमें hours और minutes में convert करना है। We know that 1 hour is equals to 60 minutes. तो 125 minutes को hours में convert करने के लिए we have to divide. तो A part करते हैं 125 minutes. तो 125 को हम divide करते हैं 60 से। 60 2 जा 120. माइनस किया 5 is the remainder and 2. That means 2 hours and 5 minutes. 2 hours and 5 minutes. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कन्वर्ट टू मिनट्स एंड सेकेंड्स। मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट 78 seconds. वी नो दैट 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds. तो मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय 60. तो 78 इज डिवाइडेड बाय 60. 60 1 जा 60 माइनस किया 18. दैट मीन्स 1 minute and 18 seconds. So it's 1 minute and 18 seconds. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चेंज टू डेज एंड आवर्स। ए पार्ट करते हैं
36 hours. We know that 1 day is equals to 24 hours. तो 36 hours में कितने days कितने hours हुए? तो 36 को हम divide करेंगे 24 से. 24 ones are 24 minus किया 2 1. So it's 1 day and 12 hours. 1 day and 12 hours. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. टेस्ट फॉर लीप ईयर. लीप ईयर के लिए चेक करेंगे. ए पार्ट 2008 00 होती है तो हम 400 से डिवाइड करते हैं, अदरवाइज हम 4 से डिवाइड करते हैं. 4 से डिवाइड किया 4 5 20, 4 5 20, 0 4 2 8. कंप्लीट डिवाइड हो गया. यस, इट इज अ लीप ईयर. तो फर्स्ट वाले के लिए आपका आंसर आएगा यस. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग आवर्स एंड मिनट्स. To add or subtract hours and minutes, write the number of hours and minutes in separate columns. Then add or subtract the numbers in the columns separately. Like first वाला करते हैं. First करते हैं add 23 minutes and 17 minutes. दोनों मिनट्स हैं तो मिनट्स का कॉलम बनाया. 23 plus 17, 3 plus 7 is 10, 0 1 carry, 2 plus 1 is 4. That is answer is 40 minutes. Now next is find 14 hours plus 18 hours. दोनों hours हैं. hours का कॉलम बनाया. 14 plus 18 ऐड किया, that is equals to 32 hours. Now next find 47 minutes minus 38 minutes. दोनों मिनट्स हैं. मिनट्स का कॉलम बनाया. 47 minus 38 that is equals to 9 minutes. Now next find 25 hours 20 minutes plus 18 hours 6 minutes. अब इसमें hours भी है मिनट्स भी हैं तो हम hours का अलग कॉलम बनाएंगे, मिनट्स का अलग कॉलम बनाएंगे. hours के नीचे hours लिखेंगे, मिनट्स के नीचे मिनट्स. तो 25 hours 20 minutes, 18 hours 6 minutes. 6 minutes हमने कहाँ लिखे हैं? बिल्कुल किस पे? आपके वंस प्लेस वाली डिजिट पे, राइट. तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 6 2 5 plus 8 is 13, 3 1 carry, 2 plus 1 is 4. 43 hours and 26 minutes. In the same way subtract करेंगे 12 hours 35 minutes from 37 hours 44 minutes. बड़े में से छोटा माइनस होता है तो hours के नीचे hours, minutes के नीचे minutes. 37 hours 44 minutes minus 12 hours 35 minutes. तो जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स को हम माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे. तो आंसर इज 25 hours and 9 minutes. Now next, Rohan plays football for 35 minutes at school. In the evening, he plays football for 1 hour 20 minutes. How much time does he spend playing football? Time spent in playing at school. School में कितनी देर खेला वो? 35 minutes. Time spent playing in the evening. Evening में कितना खेला? 1 hour 20 minutes. तो total time spent playing football. Total कितना time spent किया? 1 hour 20 minutes plus 35 minutes. तो 1 hour और 20 मिनट्स में हम 35 मिनट्स को ऐड करेंगे. 20 प्लस 35 इज 55. दैट इज 1 hour 55 मिनट्स. और आपको कॉलम वाइज भी अरेंज करके इसको ऐड कर सकते हैं. दैट इज 1 hour 55 मिनट्स. नाउ नेक्स्ट, a film took 2 hours and 50 minutes to finish. During the show, advertisements and the interval took up 32 minutes. How long was the film? Total time taken कितना है? 2 hours 50 minutes. उसमें बीच में एडवर्टीजमेंट वगैरह कितने टाइम के लिए आते हैं? टाइम टेकन बाय एड्स इज इक्वल्स टू 32 मिनट्स. तो एक्चुअल टाइम टेकन बाय द फिल्म कितना है? टोटल टाइम टेकन में से हम माइनस कर देंगे टाइम टेकन बाय एड्स. तो 2 hours 50 minutes माइनस 32 मिनट्स. आवर्स और मिनट्स का कॉलम बनाया. 2 hours 50 minutes माइनस 32 मिनट्स दैट इज इक्वल्स टू 2 hours 18 minutes. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1. डू दीज सम्स. ए पार्ट करते हैं. ऐड करेंगे. मिनट्स हैं. 6 plus 8 is 14, 4 1 कैरी, 2 plus 2 is 4 plus 1 is 5. 54 minutes. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ए पार्ट. ऐड 2 hours 36 minute and 5 hour 23 minutes. तो ऐड करते हैं hours and minutes. अलग अलग कॉलम बनाएंगे. दैट इज 2 hours 36 minutes and 5 hour 23 minutes. ऐड करते हैं दोनों को.
पहले मिनट से स्टार्ट करेंगे. 6 + 3 इज 9, 3 + 2 इज 5. नाउ आवर्स को ऐड किया, 2 + 5 इज 7. दैट मीन्स 7 hours and 59 minutes. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट. सब्ट्रैक्ट 47 मिनट्स फ्रॉम 3 hours 56 minutes. तो यहाँ पे हम आवर्स और मिनट्स का कॉलम बनाएंगे. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 hours and 56 minutes में से 47 मिनट्स को, और आवर्स 0 है तो यहाँ पे 0 लिखोगे, माइनस करेंगे. नाउ 6 - 7 नॉट पॉसिबल, वी हैव टू बोरो. इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 16. 16 - 7 इज 9. 4 - 4 is 0 and 3 hours as it is. That means 3 hours and 9 minutes. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Prema studied maths for 1 hour 15 minutes and she studied English for 1 hour 35 minutes. How long did she study? कुल कितना पढ़ी वो? तो करते हैं इस क्वेश्चन को. मैथ्स, स्टडीड मैथ्स कितना है? आवर्स और मिनट्स का कॉलम बना लेंगे हम. 1 hour 15 minutes. स्टडीड इंग्लिश कितने टाइम के लिए पढ़ा उसने? दैट इज 1 hour 35 minutes. 1 hour 35 minutes. टोटल टाइम हमें बताना है कितने टाइम उसने पढ़ा. तो टोटल टाइम हम दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. तो पहले मिनट से स्टार्ट करते हैं. 5 + 5 इज 10, 0, 1 कैरी. 1 + 1 इज 2, 2 + 3 इज 5. नाउ 1 + 1 इज 2. 2 hours and 50 minutes. 2 hours and 50 minutes वो टोटल पढ़ी है. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे. तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.